بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 32 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیتی کا۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالی ایوان، مصنف ہے میراحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 312 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 32 صفحہ نمبر 229 سے۔ یہ کیا ہے باس؟ ٹوبو نے حیرت سے پوچھا۔ غار قدرتی ہے ٹوبو، لیکن یہاں کوئی پہنچ چکا ہے۔ کون؟ یہ کوئی اور نہیں تو تمہارے خیال میں؟ ٹوبو بھی سخت حیران تھا۔ ممکن ہے کوئی اب بھی اندر موجود ہو۔ او پھر باس ضرور دیکھیں گے ٹوبو اندر کون ہے۔ میرا خیال ہے میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، زوالہ بولا۔ کیا؟ اس کی اس غیر متوقع مداخلت پر ہم نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ غار ضرور کشادہ ہے، زوالہ نے جواب دیا۔ او میں نے طویل سانس لی اور پھر میں نے اندر قدم رکھ دیا اور زوالہ میرے ساتھ تھا، ٹوبو بھی۔ ہم لوگ ایک تاریک سرنگ میں آگے بڑھنے لگے۔ میرے ذہن میں شدید تجسس تھا، آخر یہاں کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایک اور خیال اچانک میرے ذہن میں پیدا ہوا اور میں رک گیا۔ تاریکی کی وجہ سے ٹوبو اور زوالہ مجھ سے ٹکرا گئے تھے۔ ٹوبو نے فوراً کہا، رک کیوں گئے باس؟ ٹھہرو ٹوبو، کوئی ہے کیا؟ ہونا چاہیے، مگر کون؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر کوئی اقدام نہ کر بیٹھے۔ او ٹوبو نے آہستہ کہا، تم نے دیکھا اگر غار کشادہ نہ ہوتا تو یہاں گھٹن ہوتی۔ زوالہ اپنی ہی دھن میں مست تھا۔ تب اسے ہماری گفتگو سے کوئی سروکار نہ تھا۔ تب میں نے منہ کے آگے دونوں ہاتھ رکھ کے بھونپو بنایا اور زوردار آواز میں چیخا، اگر یہاں کوئی ہے تو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، ہم کسی برے ارادے سے یہاں نہیں آئے۔ میں رکا اور پھر میں نے دوبارہ یہی الفاظ انگلش زبان میں استعمال کی، پھر وہی رک کر اپنی بات کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ زوالہ حیرانگی سے میری شکل دیکھ رہا تھا اور میرا اندازہ درست نکلا۔ اچانک اس سرنگ میں ایک عجیب سی آواز بلند ہوئی۔ آواز خاصی تیز تھی۔ ٹوبو اور زوالہ اچھل پڑے۔ یہ کیا ہے باس؟ ٹوبو خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس نے شاید میرا شانہ دبوچ لیا تھا، جس سے اس کے اضطراب کا اندازہ ہوتا تھا۔ میں نے ٹوبو کی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس آواز پر غور کرنے لگا، اور پھر میں نے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ یہ بجلی پیدا کرنے والا جنریٹر تھا، اور اس خیال کی تصدیق بھی فوراً ہو گئی، کیونکہ اچانک ہم تیز روشنی میں نہا گئے۔ پوری سرنگ روشن ہو چکی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن ٹوبو اور زوالہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ باس، ٹوبو آہستہ سے بولا، فکر نہ کرو ٹوبو، سب ٹھیک ہے، مگر چند سیکنڈ خاموش رہو، میں نے کہا، اور پھر میں نے دوبارہ آواز لگائی، شکریہ، تم جو کوئی بھی ہو، کیا تم مجھ سے ملنا پسند کرو گے؟ سیدھے چلے آؤ۔ دوسرے سے ایک بھاری آواز گونجی۔ لہجہ انگریزوں کا سا ہی تھا، زبان انگریزی تھی، لیکن اب دیوقامت زوالہ کے ہوش گم ہونے لگے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آؤ، خطرے کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا، اور پھر ہم آگے بڑھنے لگے۔ تقریباً 10 گز کے فاصلے پر سرنگ کا دوسرا سرا نظر آنے لگا۔ دوسری طرف بھی تیز روشنی تھی۔ میں بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ بہرحال غار کے بارے میں ہمارا اندازہ درست تھا، وہ کافی کشادہ تھی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ بہت ساری کہانیاں میرے ذہن میں ابھر آئیں۔ پورے ہال میں چاروں طرف مشینیں لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ 3 آدمی اندر کھڑے تھے، ان کی کمر میں پستول بندھے ہوئے تھے اور چہرے کافی حد تک خشک تھے۔ ہتھیار پھینک دو، ان میں سے ایک نے بھاری آواز میں کہا، اور میں نے نیزہ دور پھینک دیا۔ ٹوبو نے بھی میری تقلید کی۔ تم افریقی نہیں ہو، ان میں سے ایک نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے جواب دیا۔ کہاں کے باشندے ہو؟ ایشیائی ہوں۔ اور اس نے گردن ہلائی۔ اور یہ دونوں میرے دوست ہیں۔ کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی اور ہتھیار ہے؟ نہیں۔ ہم تمہاری تلاشی لے سکتے ہیں؟ ضرور، میں نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور آنکھ کے اشارے سے دوسرے کو تلاشی لینے کے لیے کہا۔ اس نے ہمارے قریب آ کر ہماری تلاشی لی، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر گردن ہلا دی۔ شکریہ۔ اب تم اپنے یہاں آنے کا مقصد بتاؤ۔ صرف رہائش کے لیے کسی عمدہ سگار کی تلاش تھی، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ کیا اوپر کی چٹان تمہیں مشتبہ معلوم ہوئی تھی؟ ہاں، میرے افریقی ساتھی کا خیال تھا کہ اس کے پیچھے غار ہے۔ تمہارا ساتھی بے پناہ طاقتور ہے، اس نے دروازے کی سیل ہی توڑ دی۔ ہاں، اس کی بے پناہ قوت کا علم مجھے نہ تھا، میں نے جواب دیا۔ تم یقیناً ان دونوں سے ممتاز حیثیت رکھتے ہو۔
अगर तुम हमारे बॉस से मिलना चाहो तो मिल सकते हो। उसने कहा, मैं जरूर मिलूंगा, लेकिन मैंने टोबो और जवाला की तरफ देखा। ये दोनों आराम से यहाँ रहेंगे, इनकी फिक्र मत करो। ठीक है, मैंने कहा, और मैंने टोबो से मुखातब किया, टोबो इन लोगों से तावन करो, हमारे इनके दरमियान कोई झगड़ा नहीं है। ओके चीफ, टोबो ने कहा। वीना, उस शख्स ने एक तरफ रुख किया और एक चटानी दरवाजे से एक नौजवान औरत बाहर निकल आई। इन्हें बास के पास ले जाओ। औरत ने खामोशी से गर्दन झुका दी और फिर उसने मेरी तरफ देखा। आइए, वो शाइस्तगी से बोली, और मैं उसके साथ आगे बढ़ गया। इस चटानी दरवाजे से दाखिल होकर हम एक सुरंग में पहुंच गए। अनोखे गार थे, चारों तरफ गारों और सुरंगों का ही सिलसिला फैला हुआ था। सुरंग से गुजरकर हम एक दरवाजे पर पहुंच गए। यहाँ स्टील का एक गोल दरवाजा लगा हुआ था। औरत ने न जाने कौन सी बटन दबाई कि दरवाजा किसी ढक्कन की तरह खुल गया और औरत एक कदम पीछे हट गई। बॉस अंदर मौजूद है। मैंने गर्दन हिलाई और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। ये बड़ा गार भी बेहद कुशादा था। अंदर ठंडी सी रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर चारों तरफ मशीन और डायल लगे हुए थे। दरमियान में निहायत ही शफाफ फर्नीचर मौजूद था और इंतहाई कीमती सोफों पर एक बूढ़ा मर्द और एक नौजवान और बेहद हसीन लड़का बैठे हुए थे। इनके दरमियान शतरंज रखा हुआ था। दोनों शतरंज छोड़कर मेरी तरफ देखने लगे। आओ, बूढ़े की भारी आवाज गूंजी। शरीरे बदन का लेकिन बेहद स्मार्ट बूढ़ा था। सफेद दाढ़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी और इसकी आंखों में बेपनाह जिंदगी थी। लड़की यकीनन इसकी बेटी थी, क्योंकि इसके चेहरे पर बूढ़े की शबाहत झलकती थी। मैं इनके करीब पहुंच गया। बैठो नौजवान। शुक्रिया। मैं सोफे पर बैठ गया। बूढ़े ने लड़की से मुखातब होकर कहा, लोरेन, लेकिन इसकी निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। यस पापा, तुम मेरी क्याफिया शनासी पर भरोसा है ना? 100% पापा। तो इस नौजवान के बारे में सुनो। बूढ़े ने मुझसे मुखातब हुए बगैर कहा, एशिया के किसी मुल्क का बाशिंदा है, गालबन हिंदुस्तान। फितरतन शरीफ तबा है, पुख्ता अज़म का मालिक है, दलेर है, हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकता है, और इसके चेहरे पर करब की लकीर कहीं से चोट खाए हुए है। बूढ़ा रुक रुक कर बोलता रहा। मैं खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा। बिलाशिबा इसका कियास दुरुस्त था। मेरी आंखों में तहसीन उभर आई और उसे मेरी बातों से इख्तलाफ नहीं है। बूढ़ा आखिर में मुस्कुराते हुए बोला, क्या हाल है मिस्टर? लड़की भी एक दिलकश मुस्कुराहट से बोली, जो बातें मेरी तारीफ में हैं उन पर इंकिसारी से काम लूंगा। सब ठीक है, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। वेरी गुड। लड़की ने गर्दन हिलाई। चुनाचा कोई वजह नहीं है कि हम तुम्हें दोस्तों में शुमार ना करें। मेरी भी यही दरखास्त है। तफसीली गुफ्तगू से पहले ये बताओ, क्या खाओगे और क्या पियोगे? नाश्ता कर चुका हूँ और यहाँ अफ्रीका में चाय या काफी से महरूम, मैंने बेतकल्फी से जवाब दिया। बूढ़े ने करीब ही रखे एक आले का बटन दबा दिया। एशिया, उसने कहा। यस बॉस। कॉफी नहायत उम्दा। यस बॉस। और सुनो, दोनों अफ्रीकियों की भी खातिर की जाए। यस बॉस। ओके। बूढ़े ने बटन बंद कर दिया और मेरी तरफ देख के बोला, कुदरती बात है, जब दो अफराद, दो अजनबी एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर एक दूसरे के बारे में तजस्सुस पैदा होता है। वो अपने मुकाबल की कैफियत के बारे में मालूम कर लेना चाहते हैं और हम उन्हीं में से हैं। यकीनन जनाब, मैंने जवाब दिया। तब फिर रस्मी तारुफ हो जाए, पहले नाम और उसके बाद हम दोनों ही बारी बारी अपने बारे में बताएंगे। मेरा मतलब है, एक बात मैं, एक बात तुम। बहुत उम्दा, मैंने कहा। तो इब्तिदा मैं करता हूँ। मेरा नाम हिल लेन है और ये मेरी लोरीन, बूढ़े ने कहा और सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। नहायत दिलचस्प इंसान था। मेरा नाम सरफराज है और मैं हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ। एक्सीलेंट। मैं अमेरिकी हूँ, एक प्राइवेट साइंसदान। ये नहीं बताऊंगा कि इन पहाड़ों में क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बता दूंगा कि इंसान दोस्त हूँ और इंसान की फना के मंसूबे नहीं रखता। मैं आपकी शरीफाना तबीयत और तर्ज गुफ्तगू से बेहद मुतासिर हूँ और मुझे आपकी बात पर यकीन है, इसलिए जानने की कोशिश भी नहीं करूंगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं भी ऐसे लोगों की इज्जत करता हूँ। दरअसल मैं दुनिया से अलग थलग इस मुकाम पर इसलिए आया हूँ कि खामोशी से अपना काम करूं। मैं यहाँ किसी की मुदाखलत नहीं चाहता था, अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था। तुम पहले इंसान हो जो इन गारों में आए। दरअसल मैंने तुम्हें रात को ही देख लिया था। हमें बाहर कुछ काम भी करने थे जिन्हें तुम्हारी वजह से मुलतवी कर दिया गया। मैंने अपने आदमी से कह दिया था कि बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लें और तुम्हें यहाँ से गुजर जाने दें, लेकिन दूसरी सुबह से तुम्हारे अजीब कार्रवाई में हमने तुम्हें मसरूफ देखा और तुमने दरवाजा ही उखाड़ डाला। चनाचा मजबूरी थी।
आप जानते हैं मिस्टर हिल कि मैं भी लाइलम था। हाँ, और तुम्हें माजरत तलब करने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बारे में बताओ। आम सा शख्स, दौलतमंद था, लेकिन दौलत बाप की थी। दूसरे लोगों ने मुझे नाकारा समझा और मेरी गैरत को चैलेंज कर दिया। चनाचा मैं भी दौलतमंद बनने निकल पड़ा। जायज राय से इन चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए दौलत के लिए इस खित्ते का रुख किया और हीरो की तलाश में सरकर्दा हूँ। मेरा भी यही अंदाजा था। ये दोनों अफ्रीकी तुम्हारे मुलाजिम हैं? दोस्त हैं। इनमें से एक कबीले का सरदार है, मजलूम है। वो इस वक्त दौलत के हसूल की बजाय मैं इसकी मदद का अज़म रखता हूँ। मैंने कहा था ना लॉरीन, ये नमाया खसूसियात रखता है। दुरुस्त है पापा, लड़की ने कहा। अफ्रीकी नौजवान की क्या उलझन है? हिल्लेन ने पूछा, और मैंने मुख्तसर जवाला की कहानी दोहरा दी। हिल्लेन और लड़की दिलचस्पी से ये कहानी सुन रहे थे। ओ पापा, कैसी हसीन कहानी है, लड़की मुसरत से बोली। और तू है कहानियों की रसिया। तुम जानते हो पापा, इन्हीं कहानियों ने मेरे दिल में अफ्रीका का तजस्सुस जगाया था। मैं जानता हूँ, बूढ़ा हिलेन मुस्कुराते हुए बोला और संजीदगी से कहने लगा, मेरे बारे में भी मुख्तसर सुनो जवान। अमेरिका की एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट का मेंबर था, लेकिन सारी जिंदगी हुकूमत की मुलाजमत कबूल नहीं की। मुझे तहरीफ से नफरत थी और मैं इन लोगों का हामी था जो कहते थे कि मोहलिक हथियारों को समुद्र की तह में पहुंचा दो, इंसान की जिंदगी के लिए काम करो, मौत के लिए नहीं। चनाचे मैं पसंदीदा निगाहों में नहीं देखा जाता था, और फिर मुझे एहसास हो गया, अगर मैं इसी तरह हुकूमत के कामों की मुखालफत करता रहा तो एक दिन मुझे गोली मार दी जाएगी। चुनाचा खामोशी से तरके वतन हो गया और इन पहाड़ों में आ गया। बड़ी मेहनत और बड़ी जानफिशानी से मैंने ये सब कुछ तैयार किया है। मेरे दोस्त, अपने काम के बारे में तफसील नहीं बताऊंगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि किसी नाजुक मौके पर, जब दुनिया इंसानियत दुश्मनों के नापाक अजाइम का शिकार होने लगे, जब चारों तरफ मौत के बादल छा रहे होंगे, कुछ इंसानों की जिंदगी बचाने की कोशिश करूंगा। यही मेरी जिंदगी का नस्बुलैन है और इसी कोशिश में दिन रात मसरूफ हूँ। तुम अजीम हो हिल्लेन, मैंने कहा। नहीं, मैं एक हकीर इंसान हूँ जिसने अपनी मुख्तसर जिंदगी इस मकसद के लिए वक्फ कर दी है। मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में किसी को इल्म हो सके, लेकिन तुम हिल्लेन सुनो, हमारे यहाँ सुरह रंग को बड़ी अहमियत दी जाती है। मेरे रगों में दौड़ता हुआ खून शराफत का खून है। इसी शराफत के वास्ते से वादा करता हूँ कि तुम्हारा राज जिंदगी के आखिरी लम्हात तक मेरे सीने में दफन रहेगा, और मैं यकीन कर लेता हूँ। शुक्रिया हिल्लेन, मेरा ख्याल हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। हाँ, तकरीबन। एक बात और पापा, लड़की ने दरमियान में दखल दिया। हाँ कहो, बूढ़ा बोला। मिस्टर सरफराज शरीफ इंसान है, लेकिन दोनों अफ्रीकी। उनमें से एक इस हद तक सीधा है कि कुछ नहीं जानता, और दूसरा मेरा दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि वो ये सब कुछ भूल जाएगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है? हाँ, और मैं अच्छे इंसान तुम्हारी मदद करूंगा, हिल्लेन ने कहा। मेरी भी दिली ख्वाहिश है मिस्टर हिल्लेन। दरअसल यहाँ मैं एक पार्टी के साथ आया था, लेकिन बाद में मेरे से कुछ इख्तलाफात हो गए और मैंने इसे छोड़ दिया। मेरे पास असला भी नहीं रहा। जवाला ऐसे वक्त में मुझे मिला जब मैं इसकी भरपूर मदद नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और इन लोगों से निपटने के लिए गुर भी बता दूंगा जो तवील अरसे से यहाँ हूँ। इस दौरान कुछ ऐसे वाकयात पेश आए जो हाथ से परेशान कुन थे, लेकिन भरोसा करो सरफराज, मैं इन लोगों के जिस्म पर कोई हराश भी नहीं पहुंचाई, सिर्फ दानिशमंदी से काम लेकर इन्हें खौफजदा कर दिया। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दूंगा जिसकी मदद से तुम जवाला की मदद कर सकते हो। मैं इंतहाई शुक्रगुजार होऊंगा मिस्टर हिल्लेन, मैंने खुश होकर कहा। अपनी तकदीर समझता या जवाला की किस्मत, इत्तफाक से इस वीराने में भरपूर मदद मिल गई थी। जिस शख्स ने ताज़ीम शान कारखाना तामीर कर लिया था, वो यकीनन कुछ ऐसी चीजें भी रखता होगा जो हमारे काम आ सकती। बहरहाल 2-4 रोज में मैं तुम्हें अपना मेहमान जरूर रखूंगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं मिस्टर हिल्लेन, ये तो मेरी खुशबख्ती है। तुम मुझे महज़ब दुनिया के ताज़ा तरीन वाकयात सुनाओगे। मेरा मतलब है उस वक्त से कबल कि जब मैंने तुम्हारी दुनिया छोड़ दी थी। कोशिश करूंगा। क्यों लॉरेन? और यकीनन पप्पा, तवील अरसे के बाद हम बैरूनी दुनिया की किसी शख्स से मिल रहे हैं। चनाचा मिस्टर सरफराज, आप अपने दोस्तों को मुतमईन कर दें। मैं हदायतनामा जारी किए देता हूँ। इन लोगों के मुतमईन करने के लिए आप जो चाहे कह सकते हैं, मुझे एतराज नहीं होगा। बेहतर। मैं कॉफी खत्म करके उठ गया। बूढ़े ने फिर से एक आले का बटन दबा दिया। वीना, यस बास।
आओ मिस्टर सरफराज को उनके साथियों तक पहुंचा दो। यस सर, जवाब मिला और चंद साथ के बाद नौजवान औरत ने दरवाजा खोला। तशरीफ लाइए जनाब, उसने अदब से कहा। मिस्टर सरफराज दोस्त हैं, इनसे दोस्तों का सा सलूक किया जाए, बाकी हदायत मैं न्यूमन को दे दूंगा, हिलेन ने कहा और वीना ने गर्दन झुका दी। हम वापस उसी हाल में पहुंच गए। टोबो और जवाला कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके सामने काफी की प्यालियां और खुश्क मेवे पड़े हुए थे। मुझे देखकर दोनों खुश हो गए। लोग तो बुरे नहीं हैं बॉस, टोबो ने आहिस्ता से कहा। मिस्टर हिल लेन मेरे पुराने दोस्त हैं, यहाँ किसी रिसर्च के सिलसिले में आए हुए हैं, बस वापसी की तैयारियां कर रहे थे कि हमसे मुलाकात होगी। अरे वाह, ये तो बहुत उम्दा बात है, लेकिन ये मशीनें, ये वो सब वापस ले जाएंगे। मगर रिसर्च किस चीज पर कर रहे थे बॉस? वो डॉक्टर हैं, जड़ी बूटियों की खसूसियात दरियाफ्त कर रहे थे ताकि बहुत से लाइलाज इमराज का इलाज दरियाफ्त कर सके। बहरहाल हम चंद रोज इनके मेहमान रहेंगे। और ठीक है बॉस, वैसे उम्दा जगह है, टोबो ने खुश होते हुए कहा। जवाला बिल्कुल खामोश और बेताल्लुक सा बैठा हुआ था। बहरहाल उसे दोष भी नहीं दे सकते थे। उस बेचारे ने ऐसी ही जिंदगी जी थी कि उसे ऐसी दुनिया से बेताल्लुक कर दिया गया था। अब हाथ से अरसे के बाद उसकी असल शख्सियत वापस आ सकती थी। चुनाचा हमने उसे आराम करने दिया। फिर भी मैंने उसे मुखातिब करना जरूरी समझा और उसे आवाज दी। सवाला? हाँ, वो चौंक पड़ा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बॉस, उसे ठंडी सांस लेकर कहा। फिर भी मैं तो बस ऐसी ही बातें सोचता रहता हूँ। हमें नहीं बताओगे? तुम मुझे बेवकूफ समझोगे? हरगिज नहीं जवाला, अगर हम तुम्हें बेवकूफ समझेंगे तो फिर तुम्हारे दोस्त कहाँ से रहे? तुम बहुत प्यारे हो बॉस, सचमुच तुम इतने अच्छे हो कि मैं हैरान रह जाता हूँ। क्यों? हैरानी की क्या बात है? मैंने होश संभालने के बाद ऐसे लोगों को देखा है बॉस, जो लोगों पर रहम नहीं करते, जो सिर्फ दरिंदे हैं, जो नफरत करते हैं। उनसे सिर्फ खून खौफ खाया जा सकता है। मैं तो मोहब्बत का तस्वर खो बैठा था बॉस। तुम्हारा दिया हुआ ये खजाना मुझसे संभाला नहीं जा रहा। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं? ओ जवाला, बहरहाल अब तुम इस दुनिया से निकल आए हो, क्या तुम मुझे अब नहीं बताओगे कि क्या सोच रहे थे? बता दो, उसने झिमते हुए अंदाज में कहा। हाँ बताओ। बस यहाँ मैंने एक औरत देखी। मैं तो औरत को भूल चुका था। मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी, बस छोटी सी बहन थी। इस औरत को देखकर मुझे अपनी बहन याद आ गई। वो भी तो बड़ी हो गई होगी, जवाला ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत थोड़ा वक्त रह गया है जवाला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारी बहन तुम्हें नहीं मिल जाएगी मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। तुम्हारी बहन तुम्हें जरूर मिलेगी, मैंने कहा। आह, कैसा रूपरवर वक्त होगा वो बास। मेरे दोस्त, तुमने मेरे लिए शमें रोशन कर दी हैं, मैं तो सिर्फ तारीकियां देखने का आदी था। फिक्र मत करो जवाला, थोड़े अरसे के बाद तुम्हारे गिर्द रोशनियां ही रोशनियां होंगी। हाँ मेरे दोस्त टोबो की ख्वाहिश है कि हम लोग चंद रोज इसके साथ गुजारें। क्या हर्ज है बास? हमें वैसे भी यहाँ गार की तलाश थी। जवाला, तुम्हें तो यहाँ रहने पर एतराज नहीं? तुम्हारी किसी बात पर मुझे कोई एतराज नहीं, जवाला बोला। ठीक है, आराम से रहो। मेरा ख्याल है यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफें कोई हैसियत नहीं रखती बास। बहरहाल इन पहाड़ों में चंद रोज की ये जिंदगी मेरे लिए बहुत अनोखी जिंदगी है, टोबो ने कहा। हाँ, और उसी वक्त वीना हमारे पास पहुंच गई। आप लोग अगर पसंद करें तो मैं आप लोग की आरामगाह में आपको पहुंचा दूं। हम जरूर पसंद करेंगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और हम तीनों उठकर उसके साथ चल पड़े। और गारों की इस दुनिया को देखकर मैं अश अश कर उठा। हिल लेन ने इन पहाड़ों को अंदर से क्या बना रखा था। हालांकि बाहर से देखने पर ये बेआबोगिया नजर आते थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनके अंदर की दुनिया इस कदर हसीन होगी। हमारी आरामगाह भी बेहद शानदार थी। यहाँ आरामदेह बिस्तर लगे हुए थे। टोबो तो महजूद दुनिया में रह चुका था, उसने ये सारी चीजें देख रखी थी, लेकिन जवाला के लिए ये सब कुछ बहुत अनोखा था। अगर जंगल का ये वासी सारी जिंदगी इन चीजों से बेनियाज ना होता तो अच्छा सा तमाशा बन जाता। वक्त गुजरता रहा, हमारे लिए खाने पीने का सामान फराहम कर दिया गया और इस वक्त रात के 8 बजे थे जब वीना मेरे पास आई। मिस्टर सरफराज, बास ने कहा है अगर आप पसंद करें तो इनके साथ कॉफी पिए। ओह हाँ, क्या हर्ज है, तब बराह करम मेरे साथ चलिए। ठीक है टोबो, कोई एहसास मत करना, मैंने कहा और वीना के साथ हिलेन की तरफ चल पड़ा। हिलेन ने उसकी बेटी लोरीन इसी तरह उसी जगह बैठे थे। शतरंज की बसात उनके सामने मौजूद थी। मुझे देखकर दोनों मुस्कुराए। हेलो सरफराज, माइंड मत करना मेरे दोस्त, हम दोनों बाप बेटी कैसे काम में मसरूफ हैं जिसे हम दोनों ही खत्म करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी आमद के बाद हमने फैसला किया कि हम इसे आज ही खत्म कर ले ताकि कल पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारा जा सके। ओह शुक्रिया मिस्टर हिलेन।
तुम ने इसे हमारी बदअखलाकी तो नहीं समझा? नहीं, मेरा ख्याल है ये असूल परस्ती है, और असूल परस्ती कोई बुरी चीज नहीं होती, हरगिज नहीं। बहरहाल हम फारिग हो चुके हैं और अब बाकी वक्त तुम्हारे साथ सुकून से गुजारेंगे। बातें तो होती रहेंगी, क्या ख्याल है? ठीक है। मेरी ख्वाहिश है तुम यह अजनबियत महसूस ना करो। हम लोग दिन भर तुम्हारे बारे में गुफ्तगू करते रहे हैं। लोरीन इस बात पर मुझसे मुत्तफिक है कि तुम नहायत शरीफ इंसान हो और तुमसे हर तरह का ताउन किया जाए। खुद मेरा भी यही ख्याल है। चनाचा हमने कई फैसले किए हैं। क्या मुझे इन फैसलों से आगाह करेंगे मिस्टर हिल्लेन? अभी नहीं, और ऐसी भी क्या जल्दी है? तुम किसी किस्म की तफरीहात में हिस्सा नहीं लेते मिस्टर सरफराज? जिंदगी मसरूफ रही है मिस्टर हिल्लेन, कभी वक्त नहीं मिला। वो हम तो बाप बेटी फाजल वक्त में शतरंज को अपना मशगला बना लेते हैं। लोरीन का ख्याल है कि शतरंज का इससे बड़ा चैंपियन दुनिया में किसी मुल्क में ना होगा, और ये हकीकत भी है कि वो बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी है और मुकाबले जीत चुकी है। लेकिन बहरहाल हमेशा मुकाबले पर आया है तो उसका बाप। लेकिन डैडी, आप मुझे कभी हरा नहीं सके। इंतजार करो भाई, हरा ही देंगे एक दिन। नामुमकिन, लोरेन नहरे से बोली। और हाँ मिस्टर सरफराज, तुम शिकारी तो होगे। जाहिर है जंगलों की जिंदगी में आदमी कुछ न कुछ बने, शिकारी जरूर बन जाता है। जी हाँ, शिकार खेल लेता हूँ, लेकिन अब तो अरसे से राइफल ही नहीं मिली, मैंने जवाब दिया। ओ हाँ, वैसे निशाना वगैरह तो उम्दा होगा। बस गुजारा कर लेता हूँ। खूब, आओ बैठो। आज इस लड़की ने मुझे चैलेंज कर दिया है, लेकिन बसात नहीं लगेगी ताकि खेल मिस्टर सरफराज के सामने शुरू हो। इस गेम में आप घिर गए हैं पापा, सोच लें। इसकी बात छोड़ो, नया खेल नई बात। चलिए, आप भी क्या याद करेंगे? अरे हाँ, काफी वगैरह बन जाए तो बहुत ही उम्दा है। वीना से कहो काफी के दौरान खेल होगा। ओह, मगर एक बात तो सोचो, क्या मिस्टर सरफराज को भी इससे दिलचस्पी है, या ये अहलाकन ही बर्दाश्त करेंगे? अरे हाँ जी मिस्टर सरफराज, प्लीज, क्या आप? मैं पूरी पूरी दिलचस्पी ले रहा हूँ मिस्टर लोरेन। वैसे आपको आता है ये खेल? हाँ, थोड़ा बहुत। वंडरफुल, फिर तो एक बाजी आपसे भी होगी। जरा पापा को हरा लो, लोरेन ने कहा, और मैं मुस्कुराने लगा। खुशफहमी का शिकार न हो मोहतरमा, आप जानती हैं मुकाबल कमजोर नहीं है, हिल्लेन ने कहा, और लोरेन हंसने लगी। और फिर खेल शुरू हो गया। चालें चली जाने लगी। बिलाशुबा दोनों अच्छा खेल रहे थे, लेकिन आपको याद होगा शतरंज के मामले में मैंने अच्छू से लोहा मनवा रखा था। मैं खामोशी से खेल देखता रहा। मुझे अंदाजा हो गया था कि कौन कितना अच्छा खेल सकता है, और इत्तेफाक से लोरेन हिल एक ऐसी चाल में फंस गई। उसने परेशानी से इधर उधर देखा और फिर बौखलाए हुए अंदाज से मेरी तरफ देखने लगी। क्या गड़बड़ कर दी पापा आपने? चलो चलो, चाल चलो, हिल्लेन ने चैलेंज किया था। ओ मिस्टर सरफराज, आप मदद करें ना, लोरेन ने झिम्पे हुए अंदाज में कहा। न जाने क्यों आपकी निगाह इस घोड़े पर क्यों नहीं पड़ी? मैंने एक घोड़े की तरफ इशारा किया। क्या मतलब? आप इसे आगे बढ़ा सकती हैं। ओ, मेरा ख्याल है सरफराज साहब, माफ कीजिएगा, आपने एक अजीब चाल बताई है। क्यों मिस लोरेन? इसका क्या हशर होगा? आप फरादिली से काम ले। ये नहीं, पिटवा दे इसे, किस काम आएगा? मगर फायदा क्या होगा? इंसान को पुरुमीद रहना चाहिए। मुमकिन है फायदा हो ही जाए। ओ नहीं, ये मुनासिब ना होगा। प्लीज प्लीज मिस लोरेन। अरे मगर, लोरेन हिलाकर हंसने लगी। उसके ख्याल में ये एक अहमकाना चाल थी। फिर मेरे कहने पर उसने उस घोड़े को आगे बढ़ा दिया। हिल्लेन ने एक जोरदार कहका लगाया। थैंक यू मिस्टर सरफराज, आपने एक अदद घोड़े का तोहफा मुझे दिया है। इस एक अदद घोड़े का शुक्रिया। उसे फौरन इस मोहरे से घोड़ा पीटा जिसे मैं चाहता था। हाय मेरा मजलूम घोड़ा, लोरेन ने अफसोस से घोड़े को देखते हुए कहा, और मैं इंतजार करने लगा कि लोरेन की इस चाल पर निगाह पड़ जाए जो मैं चाहता हूँ। लेकिन लोरेन के जहन में वो चाल ना थी। खेल कुछ गड़बड़ हो गया है पापा। हाँ, हिल्लेन द ग्रेट के सामने यही होता है। हिल्लेन बच्चों की तरह खुश हो रहा था। मिस लोरेन, आप इसे क्यों बोल रही हैं जिसके लिए आपने एक घोड़ा कुर्बान किया है? मैंने एक प्यादे की तरफ इशारा किया। हाँ, अरे ओ, लोरेन मुसर्रत से चीख पड़ी। फिर से नहायत फुर्ती से प्यादा उस जगह रख दिया जहां मैं चाहता था। क्या मतलब? हिल्लेन ने मुंह फाड़ कर कहा। ये इधर है शह, ये लीजिए प्यादा। ओ सरफराज द ग्रेट, सरफराज इज द ग्रेट। वो बेसाख्ता उठी और जबरदस्ती मेरे होंठ चूम लिए और फिर तालियां बजा बजा कर उछलने लगी। मैंने घबराए हुए अंदाज में हिल्लेन की तरफ देखा, लेकिन उसने गर्दन नहीं उठाई। वो बदस्तूर गर्दन झुकाए हुए सनों की चाल को देख रहा था और काफी परेशान नजर आ रहा था। शय हो गई है पापा, अब बचिए वरना मात।
लोरेन बदस्तूर उछल उछल कर तालियां बजाते हुए बोली, कैसे हो गया? वो ठोड़ी खुजाते हुए बोला, बहुत देर हो गई है पापा, जल्दी कीजिए। अब क्या करूं? कोई चाल ही नहीं रही। तो मात। ठीक है लोरेन, मगर सरफराज। हाँ, अरे मिस्टर सरफराज। अब लोरेन पर भी हैरत का भूत सवार हो गया। क्या आपने जानबूझकर घोड़ा पिटवाया था? जी नहीं। सरफराज अनोखी चाल थी। लोरेन इनके साथ खेलो, मैं नहीं समझ सका। ये इत्तेफाक था। फिर बहुत ही गहरी चाल थी, मोहरे पटवा कर मात कर देना बेस जबरदस्त उम्दा एतमाद का सबूत है। बाजी लगाऊं सरफराज साहब? लोरेन ने पूछा। लगा लीजिए, मैंने कहा। वंडरफुल। मैं अभी तक हैरान हूं। क्या मैं लोरेन की मदद कर सकता हूं सरफराज? जरूर, इसमें क्या हरज है। तैयार हो जाओ लोरेन, बस एक चाल से तुम मुकाबले की कुव्वत का अंदाजा लगा सकती हो। एक इजाजत चाहता हूं मिस्टर हिलेन। हाँ सरफराज। मिस्टर लोरेन को शिकस्त का एहसास तो नहीं होगा। मैं इनकी मुस्कुराहट फीकी नहीं देखना चाहता। देखा देखा, ये खौफजदा करने वाली हरकतें शुरू होगी। ये नफसियाती हरबे कहलाते हैं। हिल्ले ने लोरेन को चढ़ाया। नहीं मिस्टर सरफराज, मैं एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह शिकस्त कबूल करूंगी। और उसे सारे मोहरे लगाते हुए कहा, और मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। इस दौरान काफी आ गई थी और हिलेन ने वीना को वापस भेज दिया और खुद काफी बनाकर सबको पेश की। बड़ा ही नफीस इंसान था। और खेल शुरू हो गया। लोरेन ने खूब सोच समझ कर चाल चली थी। मैंने जवाबी चाल चल दी और लोरेन सोचने लगी। फिर उसने काफी के कई घूंट लिए और फिर चाल चल दी। बहुत ही सोच समझ कर चाल चल रही थी, लेकिन पूरी बसात पर मेरी निगाह थी। मैं इसके सोचने के दौरान ये सोचता रहा था कि अगर वो ये चाल चलेगी तो मैं कौन सी चाल चलूंगा। चनाचा मैं तो फैसला पहले ही कर चुका था। मैंने दूसरे ही सेकंड में दूसरी चाल चल दी और मुहालिफ का ये अंदाज दूसरे के लिए काफी खौफनाक होता है। लोरेन ने पूरी तरह सोच समझकर तीसरी चाल चली और मैंने फिर दूसरे सेकंड में चाल चल दी। इस बार लोरेन को मेरा एक मोहरा पिटने का मौका मिल गया था, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की और मेरी चाल को सोचने लगी। बहरहाल उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। फिर मैं इस गेम को इंतहाई सनसनीखेज बनाना चाहता था और इसलिए मुझे मुसलसल मोहरे पटवाने थे। हाँ, अगर लोरेन मेरी मर्जी के मुताबिक चाल ना चलती तो मुझे सोचना पड़ता, लेकिन बहरहाल लोरेन को कोई नुकसान नजर नहीं आया। उसने मेरा मोहरा पिट दिया। तब मैंने पूरे एतमाद से चाल चल दी। बड़ा ही खौफनाक अंदाज है, माय गॉड, बड़ा ही खौफनाक अंदाज है, हिल्ले ने घुटी घुटी आवाज में कहा। लोरेन ने खूबसूरत चाल चली और किसी कदर मुतमईन नजर आने लगी। चलिए मिस्टर सरफराज, वो बोली और उसने सुकून से एक और चाल चल दी। ओ, हिल्ले ने गहरी सांस ली। इत्तफाक था, सिर्फ इत्तफाक। मुझे शिकस्त दिलाने के लिए सिर्फ एक चाल तुम्हारे जहन में आ गई थी। नहीं डियर सरफराज, लोरीन हाथ से स्टैंडर्ड की खिलाड़ी है। यकीनन ऐसा ही अंदाज होना चाहिए। मेरा ख्याल था चंद चालों में फैसला हो जाएगा। हाँ मिस लोरीन, मेरा एक और मोहरा पीटेंगी और उसके बाद उनके लिए कोई चाल ना होगी। चैलेंज, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, चलिए मिस्टर सरफराज, ये पैदल पेशे खिदमत है। मैंने सुकून से चाल चल दी और लोरीन सोचने लगी, लेकिन अभी तक मेरे दूसरे बिछाए हुए जाल को वो नहीं समझी थी। चुनाचा पूरी तरह सोचने के बाद उसने मेरा पैदल हलाक कर दिया और उसके बाद मैंने एक चाल चली। हैं, ये किधर से? हिल्लेन बोला। गलत तो नहीं है? नहीं, लेकिन इससे तुम्हें क्या फायदा? चलिए मिस लोरीन। बात मेरी समझ में नहीं आई मिस्टर सरफराज। लोरीन उलझी। मैं फंस गई। दर हकीकत मेरी ये चाल काफी गैर मुतवक्का थी। लोरीन सोचती रही, लेकिन दोनों बाप बेटी की निगाह में मेरी ये चाल अहमकाना थी और लोरीन ने जवाबी चाल चली और मैंने खुद एक और गैर मुतवक्का चाल चल दी। अरे, ये क्या कर रहे हो हिलेन जी? जी हाँ। लेकिन अचानक लोरीन सहमे हुए अंदाज में बोली, पापा चलो, तुम्हारे लिए कुमदा चाल है, इसे आगे बढ़ाओ। हिलेन ने एक मोहरे की तरफ इशारा किया और लोरेन ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, नहीं पापा, आप देखिए, ये मैं बुरी तरह फंस गई हूं। अरे, अब बसात हिलेन की समझ में आई थी। वो दिलचस्पी से मोहरों पर झुक गया और चंद मिनट के बाद उसे गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हारी चाल तुम्हारे लिए तबाहकुन है लोरेन, मगर पापा, क्या शतरंज का जादू नहीं है ये? है तो। ओह सरफराज, तुम वाकई शहंशाह हो और बादशाहों की तरह चाले चलते हो, नुकसान बर्दाश्त करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जबरदस्त एतमाद होता है। लोरीन, क्या तुमने सरफराज की चाल चलने का अंदाज नहीं देखा? हाँ पापा। क्या ये शतरंज का शहंशाह नहीं है?
एक बाजी और मिस्टर सरफराज, लोरेन ने कहा। हाजिर। मैंने शाने हिलाए और इस बार भी मैंने एक इंतहाई खूबसूरत तकनीक से लोरेन को मात दे दी और उसने मेरे हाथ चूम लिए। सरफराज, खुदा की कसम, अगर तुम बैनुल अक़वामी खेल में हिस्सा लो तो तुम्हारा कोई सानी नहीं होगा। अच्छा सुनो, हम तुम्हें उस्ताद तस्लीम करते हैं, इस बार हमें भी हमारी हामियों से आगाह करते रहो। मंजूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और इस बार आपने दूसरी तकनीक इस्तेमाल की थी। अब मुझसे आप बचे। आप मुझसे जितनी बार खेलेंगी मिस लोरेन, मैं हर बार एक नई तकनीक से खेलूंगा, लेकिन 2 चालों के बाद आपकी हामियों और आपके प्रोग्राम से भी आपको आगाह करूंगा। बिल्कुल ठीक। उसके बाद तीसरी बाजी शुरू होगी। लोरेन और हिल्लेर पूरी जानफिशानी से खेल रहे थे। जब 2-3 चालें होंगी तो मैंने कहा, देखिए मिस लोरेन, ऐसे नहीं, ऐसे चाल चलें। फर्ज करें पैदल आगे बढ़ा दूं तो मेरे घोड़े की जद में आ जाएगा। वो किस तरह? इसके बाद आपके प्यादे को हटाना पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी है, और मेरा ये दूसरा घोड़ा शाह की ताक में लग जाएगा। अरे हाँ, मगर ठीक है, मैं इसे आगे नहीं बढ़ाती। इसी तरह मेरा अब काम आसान हो गया था। मैंने निगाह रखी थी, इन दोनों चालों के अलावा कोई चाल नहीं चल सकती, इसलिए मैंने ऐसा बंदोबस्त किया। हाय, अब गड़बड़ होगी, लोरेन ने कहा। हाँ, मगर किस तरह? मेरी समझ में नहीं आ रहा। चाल चले, मैंने कहा, और लोरेन ने इंतहाई सोच समझ कर चाल चली और मैंने भी फौरन जवाबी चाल चल दी। बस लोरेन, अब मान लो, ये देखो ये घोड़ा क्या तबाही मचा रहा है। और लोरेन सोचती रही, फिर उसने गर्दन हिला दी। मिस्टर सरफराज, मैंने आपको शतरंज का शाह मान लिया। वाकई आपका खेल बहुत खूब है।